Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here, and today I am going to get discuss about the 2D elastic oblique collision. Okay, so this is 2D elastic oblique collision. So here let me consider this is a body of mass m1 which starts with initial velocity u1 equals to u. Okay, it takes place an elastic collision with equal mass of another body which is at rest. Okay, so whenever it takes place with the collision, these are m1 and m2. This is at the time of collision, at time of collision, and this is before collision, and after collision both bodies moves with velocities, first one with velocity v1 and second one with velocity v2. This is m1 and this is m2, and this body makes an angle alpha and this makes an angle beta. So this is an oblique collision. Okay, तिरछा संघट्ट है और कैसा है, एलास्टिक है. तो देखिएगा हमने ये कंडीशन मान ली, m1 and m2 both are equal mass. It hit with initial velocity u1 equals to u with another equal mass of body which is at rest, and after collision m1 mass is moving with velocity v1 with an angle alpha from horizontal, and with m2 mass with velocity v2 with an angle beta from horizontal. Okay, so here let me consider the component of first body is v1 cos alpha, and this is v1 sin alpha, and this component also in x direction v2 cos beta, and this is v2 sin beta. So you know, in elastic collision both linear momentum and kinetic energy both will be conserved. So we using conservation of momentum law and conservation of kinetic energy law. So in the first of all we will discuss in the horizontal case. In horizontal case, so in horizontal, look here, m1 its horizontal velocity u1 equals to u hit on another body m2 which is at rest, and after collision first block m1 its velocity is v1 cos alpha, and m2 its velocity is v2 cos beta. Only we have take only horizontal case. So first of all here we discuss about the linear momentum law, conservation of linear momentum law. So this is m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 cos alpha plus m2 v2 cos beta. और देखिए m1 and m2 both mass are same, m1 m2 equals to m. Due to this हमने यहाँ पर m कॉमन ले लिया, so u equals to आ जाएगा v1 cos alpha plus v2 cos beta. This is first equation. Okay, and now conservation of kinetic energy rule. Half m1 u square plus this is 0 equals to 1 by 2 m, में भी कॉमन हो जाएगा v1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा. So u square equals to v1 square cos square alpha
plus v2 square cos square beta. This is सेकेंड इक्वेशन. देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन में हम अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये यू स्क्वायर है तो ये भी यू स्क्वायर बन जाएगा. सो बाय इक्वेशन फर्स्ट. ओके, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड in equation first. So it is equal to u square equals to v1 cos alpha plus v2 cos beta whole square, and open this square. So v1 square cos square alpha, v2 square cos square beta plus 2v1 v2 cos alpha cos beta equals to u square, and by equation 2 you know that this value is u square, so u square is equals to u square plus 2v1 v2 cos alpha cos beta. So cancel out. So now 2v1 v2 cos alpha cos beta equals to 0. So we can say that cos alpha cos beta equals to 0. This is third equation. Okay, and now we will discuss in the vertical case. This is third equation, cos alpha cos beta equals to 0. Now in vertical, okay, so this is first body m1 equals to m, its vertical velocity is 0. This is m2 equals to m, its also vertical velocity is 0 after collision. This is m1, its vertical component v1 sin alpha, and this is m2, its vertical component is v2 sin beta in upward direction minus v2 sin beta. Okay, so now again using Bode's rule, conservation of linear momentum and conservation of kinetic energy. First of all, conservation of linear momentum rule. So m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 sin alpha plus m2 v2 sin beta, so minus v2 sin beta. So it is equals to v1 sin alpha minus v2 sin beta equals to 0. This is fourth equation. And conservation of kinetic energy rule, half m1 u1 square plus half m2 u2 square equals to m1 v1 square sin square alpha plus minus v2 square sin square beta. माइनस v2 sin बीटा होल स्क्वायर होने से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ओके, तो हमने डायरेक्टली यूज कर दिया. आप कर सकते हैं ऐसे माइनस v2 sin बीटा होल स्क्वायर, तो ये प्लस ही हो जाएगा. ओके, सो नाउ दिस इज आल्सो इक्वल टू 0 इक्वल टू v1 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा. दिस इज fifth equation, and again according to this, if we square this equation, so it will be equals to squaring both sides of equation 4. So v1 sin alpha minus v2 sin beta whole square equals to 0 square. So it is equals to v1 square sin square alpha v2 square sin square beta minus 2v1 v2 sin alpha sin beta equals to 0, and this value is by equation 5 0 minus 2v1 v2 sin alpha sin beta equals to 0 आप लिख सकते हैं by equation 5. Okay, so again sin alpha sin beta equals to 0. This is equation 6, and now finally we will solve this equation 3rd and equation 6. So we know that
cos alpha plus beta equals to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. So cos alpha plus beta equals to, this value is 0 minus this value is 0. So cos alpha plus beta equals to 0. So in this way the 0 value in cos case is 90 degree. So it is equals to cos pi by 2. So we can say that alpha plus beta equals to pi by 2. So in the elastic oblique collision, when two bodies moving after the collision, so angle between both bodies will be pi by 2. Okay, so in this way we will solve the angle between two bodies in the oblique elastic collision. Okay, so now we are going to discuss about the rebouncing velocity and striking velocity. So this is the relation. This a body of mass m which is initially rest freely falling on this surface. So its coefficient of restitution equals to E. So it strikes on the surface with velocity v, okay, and rebounds with velocity v dash. This is bouncing velocity, okay, bouncing velocity, and this is striking velocity. So this is the relation v dash equals to E into v, means बाउंसिंग वेलोसिटी. आप सिंपली आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं, v बाउंस वेलोसिटी इक्वल्स टू E इंटू v स्ट्राइक वेलोसिटी. बाउंसिंग वेलोसिटी को हमने किससे vb से डिनोट कर दिया और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी को हमने किससे लिख दिया vs से. तो जनरली आप ये ध्यान रखिए कि बाउंसिंग वेलोसिटी इक्वल्स टू E इंटू स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, ऐसा रिलेशन रहेगा. ओके, सो नाउ अब हम इसके रिलेशन कि कोई भी बॉडी जब बाउंस करेगी तो कितने, फर्स्ट बाउंसिंग में कितनी हाइट, सेकंड बाउंसिंग में कितनी हाइट, कैसे कवर करेगी. सो लेट दिस इन दिस एप्लीकेशन नोट 1, any body which is freely falling from here and it strikes at this point and rebouncing in this way. This is height small x. Okay, so let me consider this is h1 height. So again it will be equal to h1. Next rebouncing, this is h2, then it will be h2, and then h3, then this h3. In this way it will be completed. Okay, so let me consider at this point A, B, C. So whenever it strike at this point, so v square equals to u square plus 2gs. So v is equals to root 2gs. यहाँ जब ये बॉडी स्ट्राइक करेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये, और जब ये रिबाउंस किया सो यहाँ पर ये हो जाएगी v डैश. सो v डैश इक्वल्स टू e इंटू v, अभी हमने किया रिबाउंसिंग वेलोसिटी में रिलेशन. सो v डैश इक्वल्स टू e इंटू 2gh. अब जो रिबाउंस वेलोसिटी हो जाएगी नेक्स्ट मोशन के लिए वो किसका वर्क करने लगेगी, इनिशियल वेलोसिटी का. तो देखते हैं फ्रॉम a यहाँ से लेकर के ये a पॉइंट मान लेते हैं p तक के लिए, फ्रॉम a टू p. ये जो हमने v डैश निकाला इनिशियल के लिए इनिशियल वेलोसिटी, नेक्स्ट मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी e अंडर रूट 2gs. मान लेते हैं इसको u डैश मान लीजिए आप, और यहाँ पर आते आते इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0. सो इतनी हाइट कवर किया. तो नाउ v डैश
square equals to u square minus 2gh1. So it will be 0 and u की वैल्यू है e अंडर रूट 2gh, तो e इंटू 2gh माइनस 2gh1. सो e स्क्वायर इंटू h इक्वल्स टू h1 आ गया. देखिए अभी हमने h1 और h में रिलेशन निकाला, एक रिलेशन. दूसरा रिलेशन निकाल लेंगे और इसके बाद कॉमनली हम कह सकते हैं. तो यहाँ पर ये आया h1 इक्वल्स टू e स्क्वायर इंटू h, फर्स्ट रिलेशन. नाउ अब देखिएगा फिर वही प्रोसेस. अब ये यहाँ से फिर फॉल करेगा, यहाँ फिर स्ट्राइक करेगा, लेकिन अब की बार कितनी हाइट कवर करेगा h1. पहली बार कितनी हाइट किया था h. सो नाउ स्ट्राइकिंग वेलोसिटी नेक्स्ट हम मान लेते हैं यहाँ पर v ट्रिपल डैश. सो v ट्रिपल डैश इक्वल्स टू u स्क्वायर एंड ये इनिशियल वेलोसिटी कवर करेगा 2gh1. तो 2gh1 की वैल्यू कितनी आई है e स्क्वायर इंटू h. सो v ट्रिपल डैश का स्क्वायर, सो v ट्रिपल डैश इक्वल्स टू अंडर रूट 2g e स्क्वायर h. अब देखिए ये वेलोसिटी से ये स्ट्राइक किया, v ट्रिपल डैश यहाँ पर इक्वल्स टू अंडर रूट 2g h e स्क्वायर. तो रिबाउंसिंग वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, रिबाउंस वेलोसिटी ये हो जाएगी v फोर्थ इक्वल्स टू जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया वो इंटू e. तो ये स्ट्राइक किया है, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं e अंडर रूट 2gh. तो e अंडर रूट 2gh इंटू e. तो v फोर्थ आ गया e स्क्वायर 2gh v4. और अब जो ये v4 आया ये h2 हाइट के लिए किस कवर करेगा, इनिशियल वेलोसिटी का. तो देखते हैं अब यहां पर p डैश मान लो फ्रॉम b टू p डैश. तो यहां पर जो वेलोसिटी आई रिबाउंसिंग वेलोसिटी वो क्या है v4 ये. तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी v4 इक्वल्स टू u डबल डैश इक्वल्स टू e स्क्वायर अंडर रूट 2gh. ओके, तो ये वेलोसिटी और यहाँ पर आते आते इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, v5 मान लेते हैं. तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2g और अब की बार h2 0 इक्वल्स टू u डबल डैश स्क्वायर माइनस 2gh2. और अब फाइनली रिलेशन आने वाला है u डबल डैश स्क्वायर e स्क्वायर अंडर रूट 2gh होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh2. तो ये आ जाएगा e स्क्वायर 2gh इक्वल्स टू 2gh2. तो 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, ये होल स्क्वायर है तो e स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा. सो e पावर 4h इक्वल्स टू h2. देखिएगा अब यहाँ पर आ गया h2 इक्वल्स टू e स्क्वायर का स्क्वायर इंटू h. ओके, या सिंपली आप इसको लिख सकते हैं h1 के फॉर्म में. देखिएगा स्क्वायर के ही फॉर्म में केवल लिखा था, तो इसको आप हटाइए और देखिएगा क्या रिलेशन बना, h1 इक्वल्स टू e स्क्वायर इंटू h, h2 इक्वल्स टू e स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू h. देखिएगा फर्स्ट ये जब 1 था तो यहाँ पर आप 1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं. h2 है तो e स्क्वायर के पावर 2 आ गया. तो h3 क्या होगा e स्क्वायर का क्यूब इंटू h. तो इन दिस वे व्हाट विल बी hn e स्क्वायर टू रेज पावर n इंटू h. ये तो फॉर्म आया इनिशियल हाइट के फॉर्म में, लेकिन अगर इनको जस्ट देखिए h1 को h के फॉर्म में, h2 को h1 के फॉर्म में, h3 को h2 के फॉर्म में लिखें तो कॉमन एक ही सीक्वेंस आएगा. देखिएगा हमने h1 इक्वल्स टू e स्क्वायर इंटू h लिखा, तो h2 इक्वल्स टू हो जाएगा e स्क्वायर इंटू h1. ध्यान रखिएगा हर एक बार e स्क्वायर ही रहेगा, बस उसके जस्ट पीछे वाले हाइट के फॉर्म में. h3
ई स्क्वायर इंटू क्या होगा, इसके जस्ट पीछे वाला हो जाएगा h2। तो अगर आप hn कैलकुलेट कर रहे हो तो ई स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या आएगा n-1। तो ये जस्ट उसके पीछे वाले हाइट के फॉर्म में आ गया और ये इनिशियल हाइट के फॉर्म में रहेगा। इज इट क्लियर? सो इन दिस वे वी विल सॉल्व द रिलेशन ऑफ दिस हाइट, ओके, इन द टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट एंड ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, अब देखते हैं हम टाइम का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो क्या होगा रिलेशन विद द टाइम। सो फर्स्ट अटेम्प्ट यहां से ऐसे आया तो ये ऐसे जाएगा, मान लेते हैं इसमें t टाइम लगा क्योंकि ये सिंगल टाइम है। इसके बाद ये बाउंसिंग करेगा तो हर बार उतना ही टर्म लौट के आएंगे। t1 होगा तो ये t1, ये t2 होगा तो ये t2, ये t3 होगा तो ये t3। इस तरीके से कंप्लीट करें। सबसे पहले हम t कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सो 2h बाई g अंडर रूट इक्वल्स टू t। फर्स्ट टाइम ये आएगा। बाकी सारी चीजें हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां से यहां तक के लिए देखते हैं क्या होगा। तो देखिए ए पॉइंट ये था, ये हमने p माना था और यहाँ पर जो वेलोसिटी आई थी v डबल डैश ई स्क्वायर इंटू 2gh ऐसे आएगी। ओके, सो इसकी वैल्यू अब जब हम निकालेंगे v इक्वल्स टू, यहाँ देखिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी नेक्स्ट मोशन के लिए a टू p तक के लिए। तो v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मान लेते हैं ऐसे। तो 0 होगी, फाइनली मानने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 क्योंकि यहाँ लास्ट पॉइंट है, फिर इसके बाद फॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो v इक्वल्स टू u माइनस, इसको u डैश कर लीजिए, gt1। तो 0 इक्वल्स टू ई स्क्वायर इंटू 2gh माइनस gt1। ओके, v की वैल्यू यहाँ e होती है, यदि बाउंसिंग वेलोसिटी है ना e के फॉर्म में होगी e इंटू कितना, तो ये आ जाएगा e अंडर रूट 2gh इक्वल्स टू gt1। तो t1 की वैल्यू आ जाएगी e अंडर रूट 2h बाई g। एक ये g इस कंप्लीटली जी से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एंड इसको हम लिख सकते हैं e t इक्वल्स टू t1। देखिएगा क्या रिलेशन बनेगा। पहली बार जब हमने हाइट का रिलेशन निकाला था तो वो ऐसा आया था h1 इक्वल्स टू ई स्क्वायर इंटू एच, और टाइम का रिलेशन है तो e इंटू टी आया है। तो इसके कंप्लीट रिलेशन क्या बन जाएंगे चेक करते हैं इस तरीके से। देखिएगा t1 इक्वल्स टू ई इंटू टी, और t की वैल्यू आप पहले सॉल्व कर चुके हैं 2h बाई। तो t2 क्या होगा, अगर इसी के टर्म में निकालना हो तो ई स्क्वायर, देखिएगा इसके पावर 1 है, 2 है तो पावर 2 हो जाएगा इंटू इनिशियल टाइम, t3 ई क्यूब इंटू इनिशियल टाइम, तो tn हो जाएगा e पावर n इंटू इनिशियल टाइम, ये आ जाएगा। और अगर जस्ट बैक टाइम के रिलेशन में निकालना है तो यही आएगा t1 इक्वल टू ई इंटू टी, तो t2 इक्वल टू ई इंटू t1, t3 इक्वल टू ई इंटू t2 और tn इक्वल टू ई इंटू क्या हो जाएगा tn-1। हर बार e से ही मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिए। क्या है, जस्ट नेक्स्ट रिबाउंस की जो टाइम है उसके जस्ट बैक में जो टाइम है उसके टर्म में, और ये हमेशा इनिशियल टाइम के टर्म में है। ओके, सो इन दिस वे वी विल सॉल्व द relation between the heights with coefficient of restitution and relation between the time. Okay.